Then the question number 4, part B, that says that the provide the correct form of verb. So for 5 marks, we will do this question. This is very simple question based on the basic tenses. If you know the tenses, then you will easily solve this question. From the paper, if I take the example from this from the paper, this is federal board paper that you can see on the screen. In this paper, you can see that this is actually the paper. In this paper, you can see that there are 5. This is the part B of the question number 4 that says that to choose the correct form of verb. And for this question, we have to practice. And the sample questions are given. For example, he take the examination next year. You will find this sentence from this exercise. ये उसी एक्सरसाइज में है जिसमें से हम अभी करने जा रहे हैं. आप मोस्टली बोर्ड में वहीं से दिए जाते हैं, तो हम इस तरह से इन सेंटेंसेस को करेंगे. करना ही होता है कि आपने जो फॉर्म इन द ब्रैकेट गिवन होता है, आपने उसको यूज करते हुए वही फॉर्म अलग से नहीं लगाएंगे. You have to rewrite the sentence by correcting the exact form of verb. आपने फॉर्म भी करेक्ट करना होता है, देन आपने उसको दोबारा से पूरा सेंटेंस लिखना होता है, नॉट अ सिंगल वर्ड आपने नहीं लिखना होता. करेक्ट फॉर्म लगा के जो उसकी बनती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें ओपन चॉइस होती है, उसमें नहीं लिखा होता कि आपने प्रेजेंट टेंस करना है या पास्ट और फ्यूचर. बट अभी जो हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस. सो हमारा जो एक्सरसाइज में फोकस होगा वो प्रेजेंट टेंस पे ही होगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको टोटल 8 आते हैं और 8 में से आपने 5 करने होते हैं. तो अब बेसिक पर्पस हमारा ये है कि हम आज का ये लेसन इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट we can practice for these 5 marks. Then if we move towards the exercise that we have to complete today, the exercise is before going to solve the exercise, there is before going to solve the exercise, there is we have to revise the tenses. And as I told earlier that we are going to study the present tense. So this is the sample chart for present tense. There are 4 aspects of this tense. We have already discussed in the class. First one is present continuous tense is given, present perfect tense, present perfect continuous, and simple present or present indefinite is given. So these are the 4 aspects of this present tense. Now, what is the structure of these 4 aspects? In present simple, example is given, there is a subject plus V1 plus object. V1 stands for first form of verb. So in present simple, अब simple words में यूं कह लें कि simple present और present indefinite में हम subject के बाद first form of verb use करते हैं, then object आता है. Example यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, I यहाँ पे एक subject है, then eat यहाँ पे एक verb है, and last one is apple is on object. So इसमें simple present का कोई भी sentence जब आप पाए तो आप उसको इस तरह से करेंगे, solve करेंगे कि उसमें first form use करेंगे. और इसी का जब हम negative बनाते हैं, we have discussed in the class that we use do or does, and s or es is used with the third person singular. ये हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Then from present continuous tense, the structure is given. There will be subject, for example I, then is m or r में से कोई एक होगा. is जो होता है मोस्टली सिंगुलर के साथ आता है, m सिर्फ I के साथ आता है, and r with all the plurals. तो इनमें से आप कोई एक चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन. then v1 plus ing, ये इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर है. तो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी अभी जो हम सॉल्व करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस.
एंड एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट जब आप मूव करें तो उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हम हैव और हैज यूज करते हैं, देन थर्ड फॉर्म। और ये ग्रामर का रूल है कि हैव और हैज और हैड के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होती है। V3 यहाँ पे थर्ड फॉर्म को कर रहा है। सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसको परफेक्ट के लिए हमें इस तरह करना पड़ेगा। लास्ट वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ये करते हैं कि हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मैं मैसेज रीड कर रहा था, तो अभी दोबारा से देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर यह है। आफ्टर द सब्जेक्ट देयर इज हैज और हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड सेंस एंड फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि सेंस एंड फॉर का यूज होता है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन था। अब आप आ जाएं जो आपकी बुक में जो आपने करना है, जो आपको पेपर में आना है। अब इसको देख लें, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अभी आपके पास फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 62 और सम बुक्स पे 63 और 4 पे है, बट आपने सिर्फ वहाँ पे पेज नंबर देख लेना है एंड फर्स्ट सेंटेंस देखें और आप उसी के आगे इसको सॉल्व करके इन ब्रैकेट यहाँ पे आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सेंटेंस इज द क्वेश्चन इज पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑफ द प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का इसने दो दिए हुए आपको, आइदर यूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने इन दो को यूज करते हुए ऑल दीज 15 और 14 और 15 अपने सेंटेंसेस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सर ये पेज नंबर कौन सा, नहीं समझ लग रहा। आप ये कौन अगर सी पेज नंबर 163 नहीं है तो 164 देखें, बिकॉज न्यू बुक्स में पेज चेंज है। आप आगे पीछे देख लें, यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस होंगे जो आपके पास स्लाइड है। देन देयर विल बी रिटन पुट द करेक्ट। पहला सेंटेंस देख लें, आप वहाँ पे मैच कर लें। 2, 63, 64, 65, 66 तक आप देख लें, इन्हीं में होगा। कुछ बुक्स में आगे पीछे है तो सर नहीं है। मेरे वाले में 162 सिर्फ 62 नहीं करेंगे, आप 162 को देखें। ये कॉपी पे, नहीं, ये आपके ये कॉपी पे करना है। ग्रामर की बुक पे ही साइड पे आपने करना है, कॉपी पे नहीं करना। ग्रामर की बुक होगी, आप इंग्लिश की बुक में ना ढूंढें, ये ग्रामर की बुक में होगा। देन आप इसको देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें फ्रॉम प्रेजेंट टेंस तो आपके पास है आप इसको देखें तो पहला जो सेंटेंस आपके पास है यहाँ पे शी लव हर कैट वेरी मच एज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसको देखें, शी लव्स हिज कैट वेरी मच। अब आपने दोबारा सेंटेंस करके लिखना होता है पेपर में, बट यहाँ पे आप सिर्फ इन ब्रैकेट लिखते हैं पेज इन 164 एंड लव्स उजैर। बिल्कुल इसका लव्स होगा, उजैर ने सेंड किया, पेज नंबर भी है तो आप उसको आप देख लें। देन आप इसको अगर देखें ट्रांसलेशन का जो पूछ रहा है, तो ट्रांसलेशन मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, कल हमने काफ़ी की है कुछ, तो 20 सेंटेंसेस तो आप ले लीजिएगा। देन सेकंड का आंसर आया है, अगर आप इसको करें तो किसी ने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल, बिकॉज हमने ये पढ़ा थर्ड पर्सन। अब ऊपर वाला भी देखें, शी थर्ड पर्सन है, ही ऑल्सो थर्ड पर्सन, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल। देन थर्ड क्वेश्चन पे आए आप, तो इट रेन एट प्रेजेंट। अब देखें ही, शी, इट, तीनों थर्ड पर्सन है। अब इनके साथ जब हम देखते हैं तो इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे अब्दुल करीम ने शेयर किया हुआ है इट रेन्स गुड, तो ये आ जाएगा। अब देखें इट भी थर्ड पर्सन है, तो हम इसलिए इसके साथ एस और एस लगा रहे हैं, और एस और एस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही
होता है, बाकी हम कहीं पे भी यूज नहीं करते। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें प्रेजेंट सिंपल से सॉल्व होता है या कंटिन्यूस से, वो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ के समझ आ जाएगा। अब नंबर 4 सेंटेंसेस, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग एंड वर्ड इज गिवन ड्रिंक। अब पहली चीज तो ये है कि अब दे जो है वो प्लूरल है, इसके साथ एस नहीं होगा। इसको हम ये करेंगे कि ये एज इट इज रहेगा, दे ड्रिंक टी। इसको हम पास्ट में क्यों नहीं करते, क्योंकि ऊपर आपके पास चॉइस सिर्फ ये है प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस में करें। सच सेंटेंसेस आर आस्क्ड, अगर ऐसे सेंटेंस पूछे जाएं जिनमें आपको एक से ज्यादा उसमें आपका आंसर क्लियर हो, एक से ज्यादा टेंस में आपका आंसर आ सकता हो, देन यू कैन राइट बट इन द पेपर, क्योंकि पेपर में मेंशन नहीं होता कि आपने प्रेजेंट में करना है ये पास्ट में। तो जिस स्ट्रक्चर में आपको वो ठीक आ रहा है तो आप उसको करेंगे, बट हियर वी विल फोकस ऑन सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। एंड दे के साथ एस इसलिए नहीं लगाया, जो एस से एस लगता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। सिर्फ हम लगाते हैं ही, शी, इट और एनी नेम, किसी का कोई नेम आ जाता है उसके साथ हम एस और एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल शी गोज, ही गोज, इट गोज एंड अली गोज। ये गोज कभी नहीं होता, तो इसलिए हम प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते, इसलिए हमने ड्रिंक किया। अब सेकंड फिफ्थ है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। आप देखें यहाँ पे भी ऑलवेज है, हैबिचुअल है, कोई भी हैबिट हो उसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। जिस तरह ऊपर भी था कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यानी एक आदत है, या हर सुबह कोई भी काम करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो हर सुबह एक्सरसाइज करता है, ता है से तो पहले ही क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देन हम उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। यहाँ पे है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, तो इसको जब आप देखें तो आप 5 का किसी ने भेजा है वर्क हार्ड, अब्दुल करीम ने भेजा है गुड, तो आप इसको वर्क एज इट इज रिटेन करेंगे, वर्क हार्ड होगा। द अर्थ, आप देखें अर्थ फिर से आ गया सिंगुलर, कोई भी नेम हो या सिंगुलर हो उसके साथ हम एस और ई एस यूज करते हैं। मोहिन हैदर ने भी भेजा है, बहुत से बच्चों ने भेजा है, अब्दुल करीम ने अगेन भेजा है रिवॉल्व्स, सो इसमें रिवॉल्व्स होगा। और रिवॉल्व्स क्यों है, बिकॉज अर्थ इज अ सिंगुलर। तो हमने ये पढ़ा, ये जो आपके सामने है ही, शी, इट और नेम, नेम में अर्थ भी नेम है, तो सिंगुलर जब होगा उसके साथ एस और यस होगा। अब आगे वाला सेंटेंस 7 से आगे कुछ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आप इसको देखें नंबर अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप उसको भी देख लें साथ साथ। क्वेश्चन जी, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 7, नंबर 7, शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप उसके लिखेंगे शी लर्न्स। शी भी सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो हम उसके साथ, आप आगे देखिएगा कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और इनका नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 8 पे गौर करें, दे नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी यूज डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स तब यूज होते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट वाला लगाते हैं। तो दे के साथ प्लूरल के साथ हम डू यूज करते हैं, और सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है ये शी इट नेम के साथ डज यूज करते हैं। तो दे के साथ डू नॉट तो ऐसे ही आएगा, दे डू नॉट। अब आपको नॉट डू दिया हुआ है, दे डू नॉट डू देयर वर्क, तो ये इस तरह से होगा, दे डोंट डू देयर वर्क और दे डू नॉट डू देयर वर्क, तो ये इस तरह से आपका रेगुलर हो जाएगा। अगर आप इसको ये कहते हैं दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क रेगुलरली, तो आपको उस कंटिन्यूस में अगर आप शुरू करते हैं दे आर नॉट डूइंग, तब भी आपका ये सेंटेंस करेक्ट होता है, बिकॉज आपका जो पेपर है वहाँ पे जी जी सर जो आप रिकॉर्डिंग करें ये आप एक दफ़ा ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि सारा काम मैं दोबारा कर दूँ। मैं शेयर कर दूंगा, अगर रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है एंड पे ना, फिर शेयर कर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
देन नंबर 8 को दोबारा से देख लें तो आपके नंबर 8 जो क्वेश्चन है यहाँ पे इस सिंगिंग कहाँ से आया, ये कहाँ पे पहुँच गए, 8 पे जाए, ठीक है 8 9 पे आए पहले, 8 के बाद 11 किसी ने भेजा है, 12 भेजा है, 13, चलें आगे जब बढ़ते हैं। 9 है शायदा डैश अ सॉन्ग या सैड सॉन्ग टुडे। अब यहाँ पे इस सिंगिंग आपने अगर लिख दिया शायदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे, वो आज सैड सॉन्ग गा रही है, या फिर आप ये लिखते हैं शायदा सिंग्स अ सैड सॉन्ग, ये भी ठीक है। लेकिन जब पेपर में आपको कहा जाए आपको इनमें से कोई भी चॉइस आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको ये नहीं होता कि यू हैव टू यूज प्रेजेंट, और आपको जस्ट वहाँ पे होता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम एनी टेंस, तो आपको चॉइस होती है, तो एडजस्ट आ रहा वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करना होता है। आपके नंबर 10 है दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। अब ऑलवेज फिर हैबिट है, हम ये पढ़ चुके हैं, हैबिट के लिए हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, और यहाँ पे भी किसी ने भेजा हुआ है दे ऑलवेज कम फ्रॉम, मोइन हैदर ने भेजा हुआ है, फिर आपने इसको आंसर किया है, बहुत से लोगों ने भेजा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको ऑलवेज के बाद हैबिचुअल के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आया हुआ है जो क्वेश्चन यहाँ पे भी है, शी डैश इंग्लिश नाउ। अब नाउ की एक सिचुएशन है, नाउ में जब हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो वो प्रोग्रेसिव में होता है, यानी वो अब, अगर आप ये करें शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ तो भी करेक्ट होगा, बट मोस्ट सुटेबल जो है शी इज स्पीकिंग, यानी वो अभी कर रही है, नाउ का मतलब कंटिन्यू है, इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, तो इस तरह से हो जाएगा। बिकॉज ऊपर देखें चॉइस आपके पास कंटिन्यूस की भी है, तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ये आता है शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। अब नाउ जहाँ पे भी आएगा उसके बाद हम कंटिन्यूस ही करते हैं। देन यहाँ पे शी, अब अगला देखें शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, तो यहाँ पे हम करेंगे शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, बिकॉज ही शी सिंगुलर है, तो हम उसके साथ करेंगे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। देन नेक्स्ट वन इज द बेबी डैश, अब फिर नाउ वाला आ गया, अब इसका क्या होगा, आपने यहाँ से आंसर भेजे हैं इज क्राइंग गुड। अब क्राइंग आ गया, क्राइंग क्यों आया, बिकॉज ये अब्दुल करीम ने भेजा है क्राइंग, बिकॉज हम यहाँ पे देखें बेबी इज क्राइंग, यहाँ पे नाउ का है तो हम इसको क्राइंग यूज करेंगे, तो आप इसको ये कर सकते हैं बेबी इज क्राइंग। Our next sentence number 14 is they go to sleep at 10. अब इसकी पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या हैं, दे गो टू स्कूल एट 10 में आप देखें, अगर आप इसको एज इट इज कर दें दे गो टू स्लीप एट 10, वो 10 बजे सोने जाते हैं, हम विल यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज आपको चॉइस ऊपर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल कंटिन्यूस किया, बट पेपर में अगर आप विल गो लिखते हैं तो आपको करेक्ट है, यहाँ पे हम विल नहीं लिखेंगे, किसी ने भेजा है अब्दुल्ला बिन बशीर, तो विल हम पेपर के लिए करेक्ट है, आपको वहाँ पे ये नहीं लिखा होता, बट फॉर दिस एक्सरसाइज जब ऊपर लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूस, तो हम प्रेजेंट ही के अंदर से करेंगे, तो हम दे के साथ गो करेंगे, गोस भी नहीं आता बिकॉज दे प्लूरल है, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, दे गो टू स्लीप एट 10, तो ये इसका सूटेबल होगा, यानी वो 10 बजे सोने जाते हैं। हम इसलिए ये कर रहे हैं बिकॉज हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और कंटिन्यूस का। अब 15 है ही डैश नॉट कीप मी वेटिंग। अब ही हमने जो यहाँ पे मैं दोबारा से कर देता हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि इसके टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू और डज। क्या है डू, हम कहाँ पे यूज करते हैं, डू हम ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दे डू, वी डू, इसी तरह से अगर प्लूरल स्टूडेंट्स आ जाता है स्टूडेंट्स डू, तो इस तरह से हम ये करते हैं। देन डज हम कहाँ पे यूज करते हैं, डज हम यूज करते हैं ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ। अब यहाँ पे यह है ही नॉट कीप मी वेटिंग, तो आप इसको डज यूज करेंगे, ही डज नॉट, और जब डज यूज होता है तो आप एस एस तो हम नहीं लगाते, क्योंकि एस एस वही जो डू के आगे लग जाता है तो डज में हो जाता है, ही डजंट कीप मी वेटिंग। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 15 सेंटेंसेस, तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ही डज नॉट कीप मी, किसी ने भेजा है मोइन और जनान असजद, सो ये आपको करेक्ट है, ही डज नॉट, इस तरह से आप कर सकते हैं।
देन ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक दो लोगों से ले लेते हैं कुछ हैंड रेज में। जी, अब्दुल राहिम। आई थिंक कि पुराने वाला हैंड रेज था अभी। चलें आगे देखते हैं। तो हम इसको इट्स जनान असद। ओके, जनान असद लिखा हुआ है ऊपर, असद है। ओके, असद। ही डज नॉट कीप मी वेटिंग। तो ये आपका ठीक है जनान, ये जो आपने 15 भेजा। सो इन दिस वे आपने ये सारा इसका प्रेजेंट का कर लिया। बट वी हैव टू डू अनदर एक्सरसाइज। तो उसके लिए आपके पास 4 मिनट्स बचे हैं। तो आप देख लें इसमें अगर हो जाता है। तो नहीं होता तो हम एक ही को कर लेते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस दे लेते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स में से ये नहीं पता हैंड रेज किसका हुआ। अब्दुल राहिम। जी, राहिम नहीं है। और किसका है? असद। असद भी नहीं है। अयान। आस्क टू मीट। ये सर मैंने आपसे पूछना था कि आप ये कॉपी में हमने करना है ये वाला काम। नहीं नहीं, ये अपने वहीं से बुक के आके पेंसिल से कर लें या जिससे भी करते हैं आप उसी के आगे कर लें इन ब्रैकेट। ठीक है सर, ठीक है सर। और कल जो आपने कॉपी ट्रांसलेशन कराई थी वो तो करनी है सर। हाँ वो करनी है। वो साथ साथ करते रहें ताकि बर्डन ना पड़े। वो आपका साथ साथ, ताकि क्योंकि अभी तो एक वीक के लिए बंद है ना, ये 3-4 दिन ही रह गए हैं। तो अगर ओपन होता है तो आपको बर्डन नहीं होगा फिर। राइट सर, ठीक है। देन कोई और है? ओके जी, नेक्स्ट उसको देखते हैं एक्सरसाइज को कि आपने उसको किस तरह करना है। अगर टाइम नहीं है तो हम उसको बाद में कर लेंगे। बिफोर दिस इस क्लियर कर देता हूँ कि आपका दूसरी पेज का इफेक्ट नहीं आएगा। देन सेकंड एक्सरसाइज से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए आपने शुरू करना है। अब इसको हम देखते जाते हैं कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। टाइम इज शॉर्ट तो हम इसको करते हैं कि 4 मिनट्स में कुछ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी, एक स्टार्ट आपका जो वर्ड आया है तो इसी से ये याद रखें जहाँ पे ऑलरेडी आए। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो वहां से मतलब आप कर चुके हैं, कुछ कर चुका कहते हैं, देन दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसके लिए हम हैज और हैव यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म आई ऑलरेडी हैव टेकन, तो ये इस तरह से हो जाता है। ऑलरेडी जहाँ पे आए तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, हैव टेकन। तो अब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया जहाँ पे हैज और हैव। हैज और हैव का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। वी यूज हैज विद द सिंगुलर एंड विद ऑल प्लूरल। और ये रूल इस टेंस में कि जहाँ पे हैव आता है उसके बाद ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब सेकंड सेंटेंस पे अगर आप जरा फोकस करें तो वो है आई नॉट सी यू सिंस मंडे। अब आपने देखा इसमें सेंस यूज हुआ। अब ये परफेक्ट का तो हो नहीं सकता, ये परफेक्ट कंटिन्यूस से है। तो वहां पे हम ये यूज करते हैं आई है तो उसके साथ हैव। आई हैव बीन सीइंग यू सिंस मंडे। तो ये पूरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कैसे पता चला? क्योंकि सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ था। जब फॉर हो टाइम दिया जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट का कहा गया था तो हम उसको कर रहे हैं। अब नंबर 3 देखें, माई ब्रदर नॉट राइट टू मी फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स आ गया। यहाँ से ये क्लियर होता है कि फॉर हमें ये पता चला कौन सा टेंस है। फॉर और सेंस तो सिर्फ कंटिन्यूस में होते हैं तो हम इसको उसी में इसको आंसर करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि हैव हैज के बाद आईएनजी सेंस फॉर ये हम इसमें यूज करते हैं। तो हम इसको देखें अगर तो ये हो जाएगा माई ब्रदर नॉट बीन राइटिंग, ये इसका हो जाएगा मी फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह ये बनते जाएंगे। आप अगर चैट में देखें तो
हैव अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप सर जी सर आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी, पूछें। सर मैं सर वो मैंने फ्राइडे को सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा ये ऑनलाइन क्लास, तो सर आप मुझे सेंड करके ऑर्डर के। हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो ग्रुप में आ जाएगी। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते ओके सर। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बस साथ साथ अपडेट कर लीजिएगा काम, ठीक है। आगे है शी फ्रेंच फॉर। अब फिर यहाँ पे आपको पता चला कि फॉर आ गया। अभी क्लास का टाइम तो ऑलमोस्ट आपका 1-2 मिनट। जी, क्वेश्चन है किसी का? मैथ क्लास लिंक हैज बीन सेंड, तो आप यहाँ पे खत्म हो गया सर लिंक से मैम। आपको लिंक रिसीव हो गया तो आपको क्लास ज्वाइन कर लें, और ये इसको हम आगे कर लेंगे। आपने किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो राहिम को मैंने रेज हैंड पे किया हुआ है जी। सर वो हो गए, क्लियर हो गया। हो गया, ठीक है। अभी जो रह गया हम इसको बाद में देख लेंगे, आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर लें बेशक, क्योंकि टाइम अगर हो गया तो आप, ठीक सर है। ये कॉपीज पे करना है ना, ये जो आपने करवाया था? और नहीं, इसको आप बुक पे ही करें, अभी इसको आप बुक पे रहने दें। कॉपी पे सिर्फ वो ट्रांसलेशन और लेटर ये चीज़ें करेंगे, ये जो आप यहीं से कर लेंगे ठीक है चीज़ें, सर। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। यहाँ पे 4 के बाद जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको हम आगे देख लेंगे, क्योंकि क्लास टाइम ओवर हो चुका है। अब जो नहीं आए तो वो आप बुक पे कर लीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हमने पहले डिस्कस किया है, और आप अब ज्वाइन कर लें। आई हैव अ क्वेश्चन अब्दुल करीम जी, आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करें, मैं देख लूँ, या मैं आपको अनम्यूट करूँ, ठहरे, कैसे होगा? एक क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन था? अभी मैं आपको देखता हूँ, कहाँ गया अब्दुल करीम, सारे चले गए हैं। जी आप पूछें टीम। सर सेकंड में नोट नहीं आएगा, आपने नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कर दिया। हाँ ये बात है, ये आएगा नोट। ये साथ साथ क्वेश्चन असल में नहीं हो सकते ना अपडेट, तो आप लिखें नोट लिखा हुआ है तो आप नोट लिखेंगे। थैंक यू, ये आप करेक्ट कर लें। और सर बीन के अलावा सेंटेंस नहीं बन सकता? आई हैव नहीं नॉट सीन यू सिंस मंडे। नहीं नहीं, बिकॉज हम जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर देते हैं ना, सेंस और फॉर वाले, उनमें होता यस सर। है बीन हैज बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेंस फॉर, पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर है ना वो ये होती है, तो हम बीन लाजमी। ओके सर। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन कर लें, अभी टाइम ओवर है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, तो आगे जो रह गया हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू ऑल।